Morning student, this is the class 9 subject social science and this is chapter 2nd and the topic is physical feature of India and this is the lecture 7. This is the summary lecture. And student, today we will discuss about all important topic of this chapter and we will recall formations of physical features and the important features of major physical division. And in India there are 6 major physical divisions such as the Himalaya, northern plain and the desert, etc. And the physical features of India are very important for Indian economy because they provide us minerals, fertile soil, water, rivers, forest, etc. So student, let's start our lecture and today we will discuss about, and in India there are 6 major physical division, and the first the Himalaya mountain, the second the northern plain, and C the peninsula plateau, and D the Indian desert, the coastal plain and the island, and these are 6 major physical division. And last we solved some question. That question I have assigned in previous lecture. So student, let's start. And the first is the theory of tectonic plates. Student, many scientists and many geologists use the theory of tectonic plates to explain the formation of physical features. And the upper part of the crust made of some rocks, and the 3 types of rocks, and igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Some rocks are hard and some rocks are soft. And the student, upper part of the land is called crust, and the crust has been formed out of 7 major plates and some minor plates, and the plates are continuously moving because the molten magma is called lava inside the earth, and the molten magma inside the earth moves in a circular manner. स्टूडेंट, हमारे जो साइंटिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारी अपर पार्ट है यानी क्रस्ट है, क्रस्ट सबसे अपर पार्ट है, उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे क्या है, कोर है. हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर काफ़ी सारी क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, और उसमें बहुत सारी 7 मेजर प्लेट से बना है और कुछ माइनर प्लेट से बना है. क्रस्ट के जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेंटल, और वहाँ पे क्या होता है, मैग्मा होता है, और मैग्मा के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो लगातार क्या करती है, मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से प्लेट्स क्या रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल फीचर्स का क्या होती है, फॉर्मेशंस होती हैं. Next, types of plates movement. First, convergent boundary, divergent boundary and transfer boundary. Three types of plates movement such as convergent. Convergent means combine. When two plates come towards each other, जब 2 plates एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, comes towards each other and they formed a mountain. आप कोई भी देखना कि कोई भी 2 प्लेट्स, हम जब 2 प्लेट्स या 2 बुक्स आपस में लेते हैं, जब वहाँ जिस पॉइंट में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, शेप बन जाती है, वो यू शेप की बन जाती है. उस यू शेप को कहा जाता है माउंटेन. तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जब 2 प्लेट्स आपस में मिलती हैं और वहाँ पे शेप चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री. डाइवर्जेंट बाउंड्री, व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब 2 प्लेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री. और डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से वहां पे क्या बनती है, रिफ्ट वैली. जब 2 रॉक्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंट आ जाता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री. तो यहां पे बनती है रिफ्ट वैली. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, when 2 plates coming together, they either collide or crumble, or one may slide under the other, and they may also move horizontally past each other, and they form transform boundary. ट्रांसफर बाउंड्री में क्या है, जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं, टकराने से टूटती हैं, और कई बार वो क्या एक दूसरे के अंदर भी चली जाती हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, तो उस वाले को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, या क्या होते हैं, वोल्केनो एरप्ट होते हैं. अर्थक्वेक क्या होता है, व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट एंड द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ is called earthquake. And the volcanic
When the molten magma erupts suddenly, जब जमीन के अंदर से हीट और प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर जो लावा है, जो जमीन के अंदर जो लावा जो बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या बनती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। उनको बोलते हैं हम, ये 3 प्लेट्स हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। इन्हीं की हेल्प से साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने क्या किए हैं, अपने डिफरेंट क्या है फिजिकल फीचर्स की क्या फॉर्मेशन हुई हैं। कुछ में क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स में क्या होते हैं, कुछ माउंटेन्स बन गए हैं, कुछ प्लेटू हैं, कुछ नॉर्दर्न प्लेन है, कुछ डेजर्ट हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट है, फर्स्ट यू सी द मैप ऑफ इंडिया एंड यू नो देर आर 6 मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट अपर पार्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय Himalaya mountain, and the Himalaya mountain it is the northern part of the country and is covered west to east, and there are 3 ranges of Himalaya. Upper part is called Himadri, and the middle part is called Himachal, and the outer part of is called Shivalik. And the student, there are some highest peak of the Himalaya such as Mount Everest, and is situated in Nepal, and here his height is 8,848, and the Kanchenjunga situated in here, and the highest peak in India, Kanchenjunga, and its height is 8,598. Okay, and the Namcha Barwa situated in here, and its height is 7,756, and some mountain ranges such as Karakoram is situated in Jammu, and is the upper part of the Karakoram is situated in here. And the student, some mountain areas are Pir Panjal and the Shivalik range also. तो स्टूडेंट जो हमारा अपर पार्ट है वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट जो पार्ट है वो किसने कवर किया है, हिमालय ने। ओके, और जो आपका ये माउंटेन से जस्ट नीचे है, माउंटेन से यहाँ बहुत सारे रिवर्स क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, जैसे कि इंडस रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। यहाँ की वजह से ये अपने साथ बहुत सारे सैंड एंड सिल्ट लेके आती है। सैंड एंड सिल्ट लेके आने की वजह से यहाँ पे क्या बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। तो जो आपका माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है, काफ़ी पुराने नहीं है, इनको बने हुए काफ़ी करोड़ों साल नहीं है, बल्कि ये क्या है, रिसेंटली फॉर्म्ड लैंड मॉस है, यानी कि इनको बने हुए भी 1002 साल ही हुए हैं। पहले क्या हमारे केवल क्या थे, पेनिनसुला प्लेटू थे और आपके आइलैंड्स थे, कोस्टल प्लेन था। लेकिन जो हिमालय और माउंटेन वाला जो पार्ट है वो नया है, क्योंकि यहाँ जो रिवर फ्लो करती हैं वो अपने साथ सैंड और सिल्ट लेके आती हैं, और जब सैंड और सिल्ट जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो एरिया प्लेन हुआ, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। तो ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न प्लेन वाला है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड the agricultural land. And here is Thar desert. Indian desert is called Thar desert. It is situated in western part of the Aravalli hills. राजस्थान में अरावली हिल्स हैं और इसके वेस्टर्न पार्ट में इंडियन डेजर्ट है। उसके बाद बेटिए जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला मीन्स कवर्ड बाय 3 sides of water. East means west side covered by Arabian Sea, and east side covered by Bay of Bengal, and the southern part is covered by Indian Ocean. तीनों पार्ट्स क्या हैं आपके जो वाटर से क्या है कवर्ड है। उसके बाद जो ये आपका है पेनिनसुला प्लेटू है, ये क्या होता है, टेबल लैंड स्ट्रक्चर, यानी कि ज़मीन से क्या एलिवेशन पे होता है, और इसका ये जो ऊपर जो लेवल वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, वो पिक नहीं होती बल्कि क्या होता है, ब्रॉड होता है, यानी कि इक्वल होता है, फ्लैट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ए टेबल लैंड स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये कोस्टल एरिया है आपका, जो आपका वेस्ट टू ईस्ट कवर है। ओके, और ये जो आपके 2 आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और टोटल मेन लैंड में आपके क्या होते हैं, 2 आइलैंड्स को भी क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो आपका इंडियन फीचर्स हैं जो हमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले अपना फर्स्ट, द हिमालय माउंटेन। Himalaya mountain, geological young and fold mountain, because it is a recently formed landmass, and it is geologically young, and they are formed by folding process, and a still process of folding is going on. Student, it's become the fold mountain, and it is जो आपका हिमालय माउंटेन है बेटा वो क्या है, जियोलॉजिकल यंग, यानी इसको बने हुए काफ़ी साल लेंगे, बल्कि ये क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में जब आपस में 2 प्लेट्स, यानी कि आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया जो पहले हमारा जो
सबसे पहले जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये सारे जो थे वो पेंजिया कंटिनेंट के पार्ट थे, पेंजिया कंटिनेंट के पार्ट थे। बाद में क्या है, पेंजिया कंटिनेंट के अपर पार्ट जो उसका बोलते हैं अंगारा बोलते थे, और सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते थे। तो जो गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ईस्ट एशिया, ये जो सारे पार्ट थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद क्या हुआ, कन्वेंशन करंट, ज़मीन के अंदर से हीट और प्रेशर की वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड से क्या होगी, अलग होगी, और गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद वो नॉर्थ के साइड मूव करेगी। नॉर्थ के साइड मूव करने पे वहाँ पे उससे जो बड़ी प्लेट थी वो थी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट थी यानी यूरोप और एशिया की जो प्लेट कंबाइन थी, उसके साथ क्या हुई, कोलाइड हुई, क्रम्बल हुई, और वहाँ पे जाके उनके बीच में टेथिस सी था, और टेथिस सी में क्या हो गया, कन्वर्जेंट प्लेट जब आपस टकराती है तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं। तो माउंटेन हमारे ऐसे बने हैं, इसलिए इनको कहा जाता है जियोलॉजिकल यंग एंड फोल्ड माउंटेन। एंड इट स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो आपका माउंटेन है बेटा, ये क्या है, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न बॉर्डर में। आपने देखा है ये वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ है और बिल्कुल नॉर्दर्न बॉर्डर में है। Ranges run in the west to east direction from the Indus and Brahmaputra river। और जो इसकी रेंजेस है वो वेस्ट से ईस्ट में क्या करती हैं, इसकी लाई करती हैं, जो आपकी क्या, इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर इनके क्या आती हैं, बीच में आती हैं। ओके, इंडस रिवर आपकी नेपाल से ओरिजिन होती है, और ब्रह्मपुत्र आपकी असम के अंदर क्या, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये भी क्या फ्लो करती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं। तो ये हिमालय माउंटेन है, अपर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड हिमालय माउंटेन। एंड द रेंजेस ऑफ हिमालय, यू नो, हिमालय हैव 3 रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अपर पार्ट ऑफ द हिमालय एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट इनर और हिमाद्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड Himadri and its height is 6,000 meter. And the Himachal also called middle lesser Himalaya, and its height is 3,700 to 45 meter. And the Shivalik outermost Himalaya is called Shivalik, and the height is 900 meter to 1,100 meter. हिमाद्री, अपर पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमाद्री इसको कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट और इनर हिमालय भी कहते हैं। एक तो यहाँ पे जो माउंटेन है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 6,000 मीटर है, और इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज, यानी ये जो रेंज है वो काफ़ी दूर तक क्या हुई है, फैली हुई है। यानी कि रेंज है ये क्या है, जो माउंटेन रेंज है ये काफ़ी पार्ट्स को कवर करती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक, और जो अपर पार्ट्स में बहुत सारी बड़ी बड़ी क्या मिलते हैं, माउंटेन्स पीक्स मिलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है। एंड इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स एंड इट रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। और हिमाद्री में हमेशा क्या रहती है, बर्फ़ रहती है, वहाँ पे हमेशा क्या रहता है, बर्फ़ से कवर रहता है। और इसी वजह से वहाँ हिमाद्री वाली पार्ट में क्या बनते हैं, ग्लेशियर बनते हैं, और कुछ वहाँ पे पेरिनियल रिवर्स हैं, हिमाद्री में से रिवर्स निकलती हैं, जैसे कि इंडस है, और इंडस जो रिवर आपकी क्या है हिमाद्री से क्या करती है, फ्लो करती है। उसके बाद है हिमाचल के जो एवरेज हाइट है वो बेटा है 3,700 to 4,500 मीटर। और यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस हैं, और यहाँ वैलीज़ हैं। यहाँ जो रेंजेस है, पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज है, महाभारत रेंजेस है, और यहाँ पे बहुत सारी वैलीज़ हैं, कुल्लू, कांगड़ा एंड कश्मीर। और इसको टूरिस्ट पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ वैलीज़ हैं, और जो अपना इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। और शिवालिक को मैं क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय, और इसकी जो हाइट है वो क्या होती है, 900 to 1,100 मीटर। और यहाँ पे जो माउंटेन्स की रेंज भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। और यहाँ जो हम वैलीज़ हैं उनको क्या है, महाराष्ट्र में इनमें क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून्स एंड पाटली दून्स। तो दीज आर 3 रेंजेस ऑफ द हिमालय। एंड सेकेंड इज नॉर्दर्न प्लेन, सेकेंड फीचर इज नॉर्दर्न प्लेन। And the northern plain, these plains have been formed of alluvial soil which have been deposited by 3 river system, Ganga, Indus and Brahmaputra.
स्टूडेंट जो आपके माउंटेन में से जो रिवर फ्लो करती हैं अपने साथ बहुत सारी क्या करती हैं, सैंड एंड सिल्ट लेके आती हैं। सैंड और सिल्ट लाने से वो क्या होगी, एक जगह क्या होती है सैंडी, उसका क्या होता है डिपोजिशन होने की वजह से हमारे क्या बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। और नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में जो मेन रोल है वो 3 रिवर सिस्टम, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। और जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज 2400 किलोमीटर, और जो इसकी विड्थ है 240 to 300 किलोमीटर। यानी नॉर्दर्न प्लेन है वो सैंड सिल्ट से बना हुआ है, और इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया वो क्या फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ तो वाटर है वो भी क्या है काफ़ी अच्छा है, और जो लैंड है वो भी क्या है काफ़ी फर्टाइल है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है। क्लासिफिकेशन नॉर्दर्न प्लेन्स को बेटा 2 टाइप्स, उसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन मैंने आपको बताया था कि इंडस रिवर जो आपकी क्या है नेपाल उधर से ओरिजिन करती है, और ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती हुई अरेबियन से मर्ज हो जाती है। तो पंजाब जो प्लेन है वो फॉर्म हुआ है इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके द्वारा क्या बनाएगा पंजाब प्लेन्स। फिर गंगा प्लेन है, इट एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। गंगा प्लेन जो एरिया है, गंगा जो रिवर है वो उत्तराखंड से क्या होती है, घाघर है जो उत्तराखंड से ओरिजिन होती है, उत्तराखंड से ओरिजिन होती हुई है तिस्ता रिवर, यानी कि सिक्किम या वेस्ट बंगाल के बॉर्डर तक जो भी पार्ट आता है उसको कहा जाता है गंगा प्लेन कहा जाता है। क्योंकि गंगा प्लेन जो है, ये गंगा जो रिवर उत्तराखंड से ओरिजिन होती है, उत्तराखंड से ओरिजिन होती हुई यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती हुई है बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो वहाँ पे घाघर तिस्ता रिवर के बीच वाले पार्ट को कहा जाता है गंगा रिवर। और ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपकी नेपाल वहाँ से ओरिजिन होती है, और वहाँ से नेपाल से यू टर्न लेते हुए इंडिया में एंटर करती है, और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया को कवर करती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो दीज आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। एंड नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन and the peninsular plateau stretch of narrow coastal strip which runs along the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. Coastal plain means कि जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के साथ लगने वाला जो तट है, जो आपका कहाँ से लेके है, बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से लेके वेस्ट में अरेबियन सी के जो भी पार्ट जो फैला उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। पेनिनसुला मतलब क्या है, पेनिनसुला प्लेटू के साथ में जो है, यानी कि आपके पेनिनसुला प्लेटू यानी टेबल लैंड मास और रिकवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, और उसके साइड में जो आपकी स्ट्रिप्स हैं, यानी कि आपकी अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो डिफरेंस है, और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन। Students, first you see the map of India and you know here is Karakoram, Karakoram range, and here is Kanchenjunga, highest peak, and here is Nanga Parvat, okay, and Jaskar range, and Indian desert covered by Rajasthan, and it is lie western part of the Aravalli hills, and here is Malwa plateau, here is Malwa plateau, and Chota Nagpur, it is the ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। छोटा नागपुर ये क्या है आपका, जो आप पढ़ोगे पेनिनसुला प्लेटू में जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट वो छोटा नागपुर तक ही क्या होता है एक्सटेंड होता है। ये आपका वेस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट, इधर वाला पार्ट ईस्टर्न घाट, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इधर कुछ आपकी क्या है प्लेटूज हैं जैसे खासी, घारो एंड जयंत या अन्य पार्ट की भांग। ओके स्टूडेंट, and the western coastal plain divided into 2 parts, western coastal plain and the eastern coastal plain. And the western coastal plain, it lies between the western ghat and the Arabian Sea. जो western घाट और अरेबियन सी के बीच वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है western coastal plain, and it is a narrow plain which stretch from गुजरात to केरला। ये क्या है
काफ़ी इसका इसमें क्या होता है, डिस्टेंस काफ़ी कम होने की वजह से उसको कहा जाता है नैरो प्लेन। और ये जो एरिया है वो गुजरात से केरला तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसकी जो एवरेज विड्थ है वो है 50 to 80 किलोमीटर। एंड दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय लेस रिवर लाइक नर्मदा एंड तापी फॉर्मिंग एस्टुरीज। और यहाँ पे दो रिवर से वो क्या करती हैं, फ्लो होके वो मध्य प्रदेश से रिवर्स निकलती है, नर्मदा एंड तापी, और ये क्या करती हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या होती है, मर्ज हो जाती हैं, यानी कि अरेबियन सी में मर्ज हो जाती हैं। और मर्ज होने से पहले क्या बनाती है, एस्टुरीज मीन्स द लार्जर पार्ट ऑफ द रिवर, यानी रिवर में एंटर होने से पहले इसका एरिया क्या होता है, वाइड हो जाता है, वाइडर पार्ट ऑफ द रिवर इज मेड एस्टुरीज। कुछ तो रिवर्स डेल्टा बनाती हैं जिसमें क्या होती हैं, ट्रायंगल शेप बन जाता है। और कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं वो नदी वो क्या है, अरेबियन सी में जाने से पहले क्या बन जाते हैं, उसका एरिया क्या होता है, वाइड हो जाता है, उससे क्या बनते हैं, एस्टुरीज। एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो मुंबई टू गोवा जो पार्ट है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न स्ट्रेच, और उसका नाम दिया कोंकण वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सेकंड कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ प्लेन मीन्स कर्नाटक वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है सेंट्रल स्ट्रेच। सेंट्रल स्ट्रेच मीन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कन्नड़। और जो मालाबार कोस्ट है इट इज कॉल्ड सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये मालाबार कोस्ट है ये इट इज लाइंग इन केरला, मालाबार कोस्ट केरला में, कन्नड़ कर्नाटक में। तो आपके ये वेस्टर्न कोस्ट है वो जो 3 सेक्शन बनाए गए हैं, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। And eastern coastal plain, the plain is located between the eastern Ghat and the coast of Bay of Bengal। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है बेटा वो बे ऑफ बंगाल और आपके ईस्टर्न घाट के बीच वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट इज़ वाइड एंड लेवल्ड प्लेन विद एवरेज, ये वाइड है यानी इसकी जो लेंथ है ये क्या है, चौड़ी है, वाइड है, और इसका जो प्लेन एरिया है वो क्या लेवल्ड है, और इसकी एवरेज जो विड्थ है वो है 80 to 100 किलोमीटर। क्योंकि ईस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है इसलिए जो एरिया है वो क्या है, वाइड है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, इसके 2 सेक्शंस हैं, ईस्टर्न पार्ट के 2 सेक्शंस हैं। नॉर्दर्न पार्ट इज नॉर्दर्न सरकार, जो आपका आंध्र प्रदेश से लेके जो आपका उड़ीसा तक के जो पार्ट है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न पार्ट, और उसमें यहाँ पे है नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। और जो सदर्न पार्ट है यानी कि तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश जो पार्ट है उसको कहा जाता है सदर्न पार्ट। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। And all major peninsular river form a delta by making the land fertile such as Godavari, Krishna and Kaveri। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, जो ये सारी पेनिनसुलर रिवर है, यानी क्या है, पेनिनसुलर रिवर है, और ये जो सारी हैं ये क्या करती हैं, रिवर्स जब बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हैं उससे पहले क्या बनाती हैं, उससे पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टा मीन्स ए ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं, रिवर में मर्ज होने यानी कि वाटर बॉडीज़ में मिक्स होने से पहले क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। और ये क्या है, डेल्टा बनाती है तो जो एरिया वहाँ पे वो क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है। तो जो मेन रिवर है यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, एंड दीज आर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन। ओके स्टूडेंट, एंड देखिए बेटा यहाँ पे अभी तक हमने किया माउंटेन्स किए, और आपने अब ये यहाँ पे क्या, कोस्टल प्लेन, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन। टोटल जो कोस्टल एरिया है आपका 7516.6 किलोमीटर, और उसमें वेस्टर्न जो वेस्टर्न है वो आपका पार्ट गुजरात से लेके क्या है, गुजरात से लेके आपका केरल तक है, उसमें 3 सेक्शन है। मुंबई टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण, एंड तमिल एंड कर्नाटक पार्ट इज कॉल्ड कन्नड़, एंड द केरल पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। एंड ईस्टर्न घाट इज Tamil Nadu to Andhra Pradesh is called Coromandel coast, and the Andhra Pradesh to Odisha part is called Northern Sircar, and the Mahendragiri situated in here, and the highest peak of Western Ghat is Anaimudi, and here is Anaimudi, and the highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri, and here is Mahendragiri। ओके उसके बाद है आपके यहाँ पे, ये तो था आपका कोस्टल प्लेन, आपने यहाँ पढ़ा आपने ये पढ़ा, आपने माउंटेन्स पढ़े, ये आपने कोस्टल प्लेन पढ़े। तो यहाँ वेस्टर्न, और देखिए वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में डिफरेंस क्या है, काफ़ी कम है इसलिए को नैरो कहा जाता है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल में काफ़ी स्पेस है इसलिए कहा जाता है वाइडर। ओके, तो नेक्स्ट पेनिनसुला प्लेटू,
And the Peninsula Plateau, it is a tableland and composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. जो Peninsula Plateau है, आपको पहले ही बताया था बेटा, Peninsula means covered by, base means landmass area covered by 3 sides of water. Plateau means a tableland structure, यानी कि जो उसका जो ऊपर लेवल होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, फ्लैट लैंड को हम बोलते हैं प्लेटू. इट इज़ अ टेबल लैंड एंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टल, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स and it formed due to the breaking and drifting Gondwana land. Due to the breaking and drifting of Gondwana land, जो प्लेटू बेटा वो भी क्या थे, गोंडवाना लैंड के टूटने के वजह से ही हमारे क्या बने थे, पेनिनसुला प्लेटू बने थे. और जब ये क्या हुई थी, ड्रिफ्टिंग हुई थी, यानी कि जब आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसके साथ मर्ज हुई थी, यूरोशियन प्लेट के साथ, इसके साथ ड्रिफ्टिंग हुई थी. तो ड्रिफ्ट होने पे क्या हुए थे, पेनिनसुला, जिसकी वजह से हीट और प्रेशर की वजह से वॉल्केनिक कहाँ आए थे, बाहर आए थे. वॉल्केनिक होने की वजह से यहाँ पे क्या बने थे, पेनिनसुला प्लेटू. एंड द पेनिनसुला प्लेटू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सोइल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन ट्रैप. पेनिनसुला प्लेटू इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन ट्रैप बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑफ ब्लैक सोइल. पेनिनसुला जो प्लेटू है वो इग्नियस रॉक, यानी कि वहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ था, और वॉल्केनिक ओरिजिन होने पे वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या है, काले रंग की है, ब्लैक सोइल है. और जो ब्लैक सोइल है आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉटन. ओके, एंड द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स. जो प्लेटू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज पाई जाती हैं. और जो हिल्स हैं वो क्या है, उसमें हिल्स भी हैं, वो क्या होती हैं, राउंडेड होती हैं. राउंडेड होती हैं यानी उसमें कोई भी पीक नहीं होता. और वैली आपको पता ही है, वैली क्या होती है, ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन. हिल्स और माउंटेन के बीच में जो लो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, वैली. और जो आपका प्लेटू है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. देखिए बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपका पेनिनसुला प्लेटू, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, प्लेटू, पेनिनसुला प्लेटू. एंड द नर्मदा रिवर ओरिजिन फ्रॉम मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, हट ऑफ द मध्य प्रदेश कॉल्ड नर्मदा रिवर. और नर्मदा रिवर है वो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल क्या है, मिड में है. तो नर्मदा रिवर से अपर पार्ट को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सटेंट पॉइंट है छोटा नागपुर. और आपका जो डेक्कन प्लेटू है, सतपुड़ा रेंज से जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू. और जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्रायंगुलर शेप, आप देखो यहाँ पे बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, टैपर हो जाता है, यानी यहाँ तक फैला हुआ है. और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, और जो आपकी ईस्टर्न घाट की है वो महेंद्रगिरी है. ओके, तो उसके बाद जो आपके यहाँ पे जो है सेंट्रल हाइड में मेन जो रिवर है, चेनाब, सिंध, बेतवा, खिंड, ये कहाँ की, ये जाती हैं वेस्ट से ईस्ट की साइड, क्या करती हैं, फ्लो करती हैं. और यहाँ ये फ्लो करती हैं, ये मेन रिवर. उसके बाद गंगा जो रिवर उसमें क्या होती है, मर्ज हो जाती हैं. और यहाँ पे बहुत सारी क्या है, यहाँ हिल्स पाई जाती हैं, जैसे अजंता है, महादेव हिल्स है. और उड़ीसा से यहाँ महानदी निकलती है. और यहाँ पे उड़ीसा में आपको पता है चिल्का लेक भी है, लार्जेस्ट साल्ट लेक है. और यहाँ से आपकी जो ये मेन रिवर्स हैं, जो आपकी गोदावरी हैं, कृष्णा, कावेरी हैं, वो कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं. और नर्मदा और तापी हैं, वो किसके, नर्मदा जो तापी हैं वो मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती हैं. और जब ये अरेबियन सी में मर्ज होती हैं तो ये क्या बनाती हैं, एस्टूरीज बनाती हैं. इसके अलावा जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं वो बनाती हैं डेल्टा. एंड सेंट्रल हाईलैंड, इट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. एंड सेकेंड, मालवा प्लेटू मेक्स अप द सेंट्रल हाईलैंड्स. जो सेंट्रल हाईलैंड्स के मेन जो उसमें कौन सा बना हुआ प्लेटू, मालवा प्लेटू बना है. मैंने आपको पहले बताया मालवा प्लेटू बिल्कुल क्या है, सेंट्रल हाईलैंड के बीच में है. एंड कवर्ड बाय विंध्या. जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके नॉर्थ में विंध्या रेंजेस है, सतपुड़ा एट साउथ में सतपुड़ा, मैंने आपको बताया था ना कि सेंट्रल हाईलैंड है उसके नॉर्थ में विंध्या है, और साउथ यानी नीचे जो बिलो पार्ट है वो सतपुड़ा है. एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट. एंड डेक्कन प्लेटू, ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, और इसको क्या है, रिवर नर्मदा के जो सदर्न वाला पार्ट उसको कहा जाता है डेक्कन प्लेटू. And the Satpura ranges is called northern border of Deccan Plateau, and the Mahadev, Kaimur, McCall range is the eastern border. जो डेक्कन प्लेटू मैंने आपको बताया था कि वो ट्रायंगल शेप है, जो इसके ईस्टर्न बॉर्डर है उसमें क्या है, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज.
And the Deccan Plateau is higher in the west and slope gently eastward. Means the height of the Deccan Plateau in the west is high and the east part of the Deccan Plateau is low. An extension of this plateau is also found in northeast Meghalaya Plateau. Garo, Khasi and Jaintia hills are found in Meghalaya. And Karbi Anglong Plateau and North Karchar hills. जो स्टूडेंट जो डेक्कन प्लेटू है उसकी जो हायर है वेस्ट, वो क्या है, वेस्ट पार्ट में थोड़ा सा क्या हाइट पे है और जो ईस्ट पार्ट में है वो थोड़ा लो है, और उसकी तरफ वो क्या होता है, वेस्ट से फिर ईस्ट की तरफ क्या होता है, स्लो बनता है उसका। और प्लेटू है बीच में क्या होता है, प्लेटू क्या होते हैं आपके जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ प्लेट्यूज़ हैं, जैसे कि मेघालय में है गारो, खासी एंड जयंतिया। बीच में क्या है, रिवर्स आने की वजह से जो प्लेट्यू बिल्कुल क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, रिवर्स ने उनको क्या करा, कवर कर लिया था। लेकिन क्या है, थोड़ा सा मेघालय के साइड उधर जाते हैं, ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से हमें प्लेट्यू नज़र आते हैं, जैसे गारो, खासी एंड जयंतिया। और उसके अलावा वहाँ पे कार्बी एंग्लोन प्लेट्यू है, और वहाँ पे नॉर्थ कर्चर हिल्स भी वहाँ पे क्या होती हैं, पाई जाती हैं। एंड द डिवीज़न ऑफ डेक्कन प्लेटूज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। एंड द स्टूडेंट वेस्टर्न घाट इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली, passes only, and the average height of Western Ghat is 900 to 1600 meter, and the highest peak of Western Ghat is Anai Mudi, and its length is 2695 meter. And the Eastern Ghat it lie eastern part of the country, and it is discontinuous, irregular and dissected by the river drainage into Bay of Bengal. And its the highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri, and its length is 1501 meter. And next, fifth feature of the physical division and that is Indian desert, and it lies toward the western margin of Aravalli Hills. इंडियन डेजर्ट आपको पता है कि अरावली हिल्स के बिल्कुल क्या वेस्टर्न पार्ट में जो पार्ट उसको कहा जाता है अरावली हिल्स। And undulating sandy plains covered with sand dunes. It's covered by sand dunes. Sand dunes can means a dune is made up of sand and built by wind and flow of water. जो सैंड ड्यून्स हैं वो क्या कहा जाता है, मिट्टी के टीले कहा जाता है। जो इंडियन डेजर्ट है वो उसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, सैंडी ड्यून्स मिलते हैं। और जो सैंडी प्लेन्स है वो भी अनडल्टिंग मतलब क्या है, उबड़ खाबड़ है, यानी कि प्लेन एरिया ना हो के वहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अप एंड डाउन्स बने होते हैं। द इंडियन डेजर्ट हैव ओनली लो रेनफॉल इज 150 मिलीमीटर, यानी यहाँ पे इंडियन डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर। Arid climate, due to arid climate, poor vegetation, and rivers appear during in rainy season, means stream, yeah, means rainy season appear in only rainy season. And the only river flow in Rajasthan in desert is Luni river, okay. And the barchans and the sand dunes are some Christian shape, means semicircle shaped, is called barchans, and it's cover large part of the Rajasthan, and Rajasthan is also called Thar desert. देखिए स्टूडेंट, एक तो वहाँ पे राजस्थान है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, और आपको पता है वहाँ पे एक एरिड क्लाइमेट है, वेजिटेशन कम होती हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और जो नदियाँ हैं वो केवल रेनी सीजन में ही नज़र आती हैं, नहीं तो वो क्या होती हैं, तो सूख जाती हैं टेम्परेचर की वजह से। और क्या जो थोड़ा पानी होता है वो क्या होता है मिट्टी में ही उनमें मिल जाता है, तो उसमें रिवर्स हमें नज़र नहीं आती हैं। तो लार्ज रिवर हैं वहाँ पे, लूनी रिवर है, और जो वहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं उनकी जो शेप्स होती हैं वो होती है क्रिश्चियन शेप, यानी कि सेमी सर्कल शेप में होते हैं, उनको बोलते हैं बार्चन्स। और मोस्टली राजस्थान के जो पार्ट है थार डेजर्ट में क्या है, बार्चन्स देखने को मिलते हैं। एंड द आइलैंड, यू नो, in India we have 2 islands, Lakshadweep Island in Arabian Sea and Andaman Nicobar in Bay of Bengal. And the Lakshadweep Island are a group of 36 islands, and Lakshadweep Island is the tiniest union territory in terms of area, and Lakshadweep capital is Kavatti, and the Andaman Nicobar capital is Port Blair. And Lakshadweep island is made up of coral
कोराल्स मीन छोटे छोटे जो क्या होते हैं, पानी में रहने वाले जीवों से बना हुआ आइलैंड्स हैं, जिसमें क्या है जो जीव होते हैं कोराल्स होते हैं वो क्या है, वो क्या करते हैं कॉलोनीज यानी वो ग्रुप में होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब एक जगह पे क्या होता है इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कोराल आइलैंड कहा जाता है। अंडमान निकोबार में है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, अपर पार्ट्स को अंडमान कहा जाता है और सदर्न पार्ट को निकोबार कहा जाता है। और निकोबार यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है, ये लमसम 350 आइलैंड से मिलके बना हुआ एक आइलैंड्स। ओके स्टूडेंट, and these are 6 major physical division of India, and these are very important for Indian economy because Himalaya mountain provides us water, forest, and the peninsula provides is the storehouse of minerals. Northern plate is a fertile land, and the coastal area and the coastal area and the island are the important place for tourism and the development for fisheries. So student, okay, and the major physical division are very important for enhance Indian economy and we conserve our physical features. And homework solution is first, the tick the correct answer, and the answer is a landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as peninsula. Answer is peninsula. And the mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called Purvanchal. And the western coastal strip south to Goa is referred to as Kannad. Highest peak in the eastern Ghat is Mahendragiri. And first question, what are tectonic plates? The crust of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates, and these plates have been named as tectonic plates. Which continent today we are part of Gondwana land? Asia, Australia, South America, Africa and Antarctica continent were parts of the Gondwana land. And Bhabar is that a narrow belt of plains which is covered with pebbles and lies along the foothills of the Shivalik from the Indus and Tista. Name the 3 major divisions of Himalaya from north to south. Answer is the Great or the Inner Himalaya, the Middle Himalaya or the Himachal, and the Outer Himalaya or the Shivalik. And the 3 major divisions. Fifth, which plateau lies between the Aravalli and Vindhya Range? And the Malwa plateau lies between the Aravalli and the Vindhya Range. Name the island group of India having coral origin in Lakshadweep Island. Difference between converging and diverging boundary. And the student, when tectonic plates move towards each other is called converging, and they may collide or slide under each other. Example, Himalayas are formed. And diverging, when tectonic plates move away from each other, they create a gap between the plates. An example, formation of Rift Valley. Bangar and Khadar, it is old alluvium soil and Khadar is a new alluvial soil. It is found away from the river, and it is Khadar, it is found near the river. It is less fertile, it is very fertile. It contains conker nodules, it does not contain conker nodules, and the soil is dark in color and the soil is light in color. Western Ghat, Eastern Ghat. Western Ghat, it lies parallel to western coast. These are continuous and can be crossed through passes only, and they have an average elevation of 900 to 1600 meter, and highest peak is Anaimoti. Eastern Ghat, they are located on the east coast of India. These are discontinuous, irregular, dissected by river and drainage into Bay of Bengal, and they have an average elevation of 600 meter, and the highest peak is Mahendragiri. Describe how the Himalayas were formed. Answer is, according to the theory of tectonic plates, the earth crust was initially a single giant landmass called Pangaea. Its northern part was known as the Angara land, and where the southern part was known as the Gondwana land, and the crust was split into number of pieces due to the convectional current, resulting in the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards south. And the north
were drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate. Because of the collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geocycline known as the Tithith were folded to form the mountain system of Western Asia and the Himalaya. Question 5th. Which are the major physiographic division of India and the differences between Himalaya and the Peninsula Plateau? And there are 6 major physical divisions such as Himalaya Mountain, Northern Plain, Peninsula Plateau, Indian Desert, Coastal Plain and the Island. And difference between Himalaya region and Peninsula Plateau. Himalaya region formed by folding process due to collision of Indo-Australian plate and Eurasian plate. Himalaya are made of sedimentary rocks. Himalaya are mountain formed unstable zone. Himalaya are the most recent landform. Himalaya average height of 6,000 meter, and the Himalaya are rich in water resources and forest wealth, and perennial river originate in the Himalaya. And the Peninsula Plateau formed due to the breaking up of drifting of Gondwana land. Plateau contains igneous and metamorphic rocks considered to be one of the most stable land blocks. And the Deccan Plateau is one of the most ancient land masses, and the average height of plateau is 900 meter. And next, the plateau is a storehouse of minerals. And 6, Peninsula river are seasonal. And the importance of the northern plain and the features of northern plain are: these plains have been formed of alluvial soil which have been deposited by the river system comprising the Ganga, Brahmaputra and the Indus and their tributaries. These plains spread over area of about 7 lakh square kilometer, and the length of the northern plain is 2400 kilometer, and it is a densely populated, and it is also called agricultural land. Question number 7. Short on the following. Indian desert. The Indian desert lie towards the western margin of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plains covered with sandy dunes. These regions receive very low rainfall below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Luni is the only river in the region, and the Indian desert is known as the Thar Desert. Central Highland. It lies in the north of the Narmada River, and it is the major river of Malwa Plateau. It is wider in the east but narrow in the east. And the hills lying in this region are the Vindhya Ranges and the Aravalli Hills. River of this region are Chambal, Sindh, Betwa and Kane. And the sea, island group of India. And two island, Lakshadweep. These lies close to the Malabar coast of Kerala in the Arabian Sea. These are composed of small coral islands. These are small in size as compared to Andaman and Nicobar Island. Andaman and Nicobar Island, these are located in the Bay of Bengal. These are bigger in size and are more numerous and scattered, and these island has elevated portion of the submarine mountain. Okay, student. And student, today your homework is solve assignment, and test will conduct on 29th May Friday at 11:30 AM at Edquark site. Student, आपको you can get assignment on Edquark site. ओके और जो आपका टेस्ट है 29th में फ्राइडे को है 11:30 पे, और आपने 1 घंटे के अंदर अपना पेपर सबमिट करके एडक्वार्क साइट पे या जीमेल पे आपने क्या करना है, अपना पेपर सेंड करना है. ओके और आपका जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 25 मार्क्स का, और सभी स्टूडेंट्स ने अपने जो पेपर है उस पर प्रॉपर आपने अपना मेंशन करना है, अपने प्रॉपर उनमें फिल करना है, और आपने 1 घंटे के अंदर उसको सबमिट करके सेंड करना है जीमेल पे या एडक्वार्क साइट पे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड कीप लर्निंग.